السلام علیکم، شہرنامے کے ساتھ میں ہوں صدف شمس۔ شامل کریں گے شہ سرخیاں۔ ملک کے مختلف شہروں میں پیٹرول نایاب ہو گیا، عوام لائن میں لگ کر پیٹرول بھروانے پر مجبور، کئی پیٹرول پمپ سے زائد قیمت پر پیٹرول کی فروخت جاری۔ بورے والا میں پولیس کی کارروائی، 6 ملزمان گرفتار، شراب، چرس اور ناجائز اسلحہ برآمد، مقدمات درج۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ SOPs کی خلاف ورزی، اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ جویرا مقبول اور پولیس کی مشترکہ کارروائی، متعدد دکانیں سیل کر دی۔ پتوکی میں اسسٹنٹ کمشنر کا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائیاں، بھاری جرمانے عائد۔ اور ٹیکس ضلع میں نادرا آفس کا افتتاح کر دیا گیا، اسلحہ لائسنس ڈیسک اور پاسپورٹ ڈیسک کی سہولت بھی موجود، عوام خوش۔ شہ سرخیاں آپ نے جانی، شہرنامے کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر کمی کے بعد تحصیل راولپنڈی میں پیٹرول پمپس پر پیٹرول نایاب ہو گیا۔ پیٹرول پمپ مالکان نے مصنوعی قلت پیدا کر کے مہنگے داموں پیٹرول فروخت کرنا شروع کر دیا ہے، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت کی طرف سے پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر کمی ہوتے ہی راولپنڈی میں پیٹرول پمپ مالکان نے پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کر دی، جس کی وجہ سے پیٹرول پمپس پر پیٹرول نایاب ہو چکا ہے۔ راولپنڈی شہر میں مختلف مقامات پر قائم پیٹرول پمپ پر شہریوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں، جبکہ پیٹرول پمپ مالکان پیٹرول دینے سے مسلسل انکاری ہیں۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو پیٹرول پمپ مالکان فوراً ریٹ بڑھا دیتے ہیں، لیکن جب قیمت میں کمی ہوتی ہے تو عوام کو مصنوعی قلت پیدا کر کے ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ انتظامیہ اور متعلقہ ادارے کارروائی کے مجاز دیگر افسران پیٹرول پمپ مالکان کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ عوامی، سماجی، شہری اور دیگر حلقوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے فی الفور پیٹرول پمپ مالکان کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک کیسر امین، میٹرو ون نیوز، راولپنڈی۔ ملک کے دیگر اضلاع کی طرح مظفر گڑھ میں بھی پیٹرول پمپوں پر پیٹرول کی عدم دستیابی سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے ملک کے دیگر اضلاع کی طرح مظفر گڑھ میں بھی پیٹرول نایاب ہو گیا۔ شہر اور نواحی علاقوں میں پیٹرول پمپ مالکان نے پمپ بند کر دیے ہیں، جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علی پور اور دیگر علاقوں میں پیٹرول پمپ بند ہونے کی وجہ سے شہری شدید پریشان دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ بعض پیٹرول پمپوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے پیٹرول پمپس کھلوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہنگو تحصیل ٹل میں حکومت کا ریلیف عوام کے لیے عذاب بن گیا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے بعد کئی روز گزرنے کے بعد بھی پیٹرول کے حصول میں عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ ہنگو تحصیل ٹل میں حکومت کی جانب سے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد پیٹرول کے حصول کے لیے شہریوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ پیٹرول پمپس یونٹ بلیک پر پیٹرول بیچنے والے پیٹرول پمپس پر ناجائز منافع خور اور ذخیرہ اندوزوں نے بوتلوں گیلیکین کے ذریعے پیٹرول کی وصول جاری رکھی ہے۔ اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا کہ جب پیٹرول سستا ہوتا ہے تو پیٹرول مالکان پیٹرول پمپ بند کر دیتے ہیں، جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو پیٹرول پمپ کھول دیے جاتے ہیں، جو عوام کے ساتھ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ گاڑیوں میں پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے سخت پریشان ہے، کوئی بھی کام نہیں ہو رہا۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ پیٹرول پمپ مالکان کے خلاف کارروائی کر کے پیٹرول بلیک پر بیچنے سے روکا جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے اور اس سستے پیٹرول سے عوام فائدہ اٹھا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ نثار بنگش، میٹرو ون نیوز، ضلع ہنگو۔ ٹیکس ضلع میں بھی نادرا آفس کا افتتاح کر دیا گیا، جس میں اسلحہ لائسنس ڈیسک اور پاسپورٹ ڈیسک کی سہولت بھی موجود ہوں گی۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
टेक्सला में विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने MNA मंसूर यात्र MP अम्मार सदीक खान के हमरा नादरा ऑफिस का इफ्तिताह किया, जिसमें असला लाइसेंस डेस्क और पासपोर्ट डेस्क की सहूलत भी मौजूद होगी। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने इफ्तिताह के मौका पर इमाद इलाका से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की मीशत ज़बूहाली का शिकार है। पूरी दुनिया में कोरोना यकसा तौर पर फैला। टेक्सला में अरबों रुपए के तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं। साबिक हुक्मरानों ने सियासी बुनियादों पर लोगों को नवाजा, लेकिन हैरत है कि जिन लोगों ने इस मुल्क को 35 सालों से दोनों हाथों से लूटा वो आज भी हम पर तनकीद कर रहे हैं, उनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत नामसाइद हालात के बावजूद अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशिश है। कोरोना की वजह से जो लाखों लोग बेरोजगार हुए, हुकूमत ने ऐसे लोगों के लिए अरबों रुपए मख्तस किए और बिला तफरीक तमाम लोगों को एहसास प्रोग्राम के तहत ये रकम दी गई। सिर्फ तहसील टेक्सला में 13,000 अफराद को 13 करोड़ 45 लाख रुपए इस प्रोग्राम के तहत तकसीम किए गए। दूसरे फेज में भी 9,000 अफराद को ये रकम दी जाएगी। हम बिला तफरीक अवाम की खिदमत कर रहे हैं। इससे पहले हुक्मरानों ने सियासी बुनियादों पर काम किए। नामसाइद हालात के बावजूद टेक्सला में 5 अरब से जायद के तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं। अवाम की खिदमत हमारा शेवा है और हम हर हाल में ये काम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि टेक्सला वाहिद तहसील है जिसमें दूसरा नादरा ऑफिस शुरू किया गया और इंशाल्लाह बहुत जल्द टेक्सला में पासपोर्ट ऑफिस की सहूलत भी मौजूद होगी। इसके अलावा बहुत जल्द चक्री में भी एक नादरा ऑफिस का इफ्तिताह होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए इस मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद की। वफाकी वज़ीर ने अवाम से अपील की कि हुकूमत की SOPs पर अमल करें और कहा कि मैं दुआ दूंगा अल्लाह ताला हमें इस वबा से जल्द छुटकारा दे और तमाम पाकिस्तानियों को इस मूजी बीमारी से अपनी हिफाजत में रखे। कैमरा टीम के साथ फयाज खान, मेट्रो 1 न्यूज़, टेक्सला। सफदराबाद की खबर शामिल करें। आपको बताएं, सफदराबाद में चोरी और डकैती की वारदातों के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज करके पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। सफदराबाद और गिरदोनवा में डकैती और चोरी की वारदातों में इजाफे पर शहरियों का पारा भी हाई हो गया। सफदराबाद मानावाला रोड पर डाकू ने 2 घंटे नाका लगाकर शहरियों से लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान छीन लिया, जिस पर शहरियों ने शदीद एहतजाज किया। तकरीबन रोज का मामूल बन चुका है और हमारी DPO शेखपुरा और IG पंजाब से मुतालबा है कि इन डकैती की वारदातों को कंट्रोल किया जाए। रास्ते में गोंदला वाले के काकों ने रोका है, ठीक है, 2 घंटे तक लूटते रहे हैं। काफ़ी सारे बंदे लूटे हैं। 1 से 1.5 माह हो गया, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। चोरी की वारदातों में पुलिस की आशीर्वाद है। अगर हमारी वारदातें केस ना की गई तो हम इंशाल्लाह ताला, जैसा कि मियां साहब ने कहा, कि भरपूर एहतजाज करेंगे और अगला एहतजाज इंशाल्लाह ताला DPO दफ्तर के बाहर होगा। हैदराबाद में गए तो SHO साहब DSP साहब ने बोला क्या आपकी मोटरसाइकिल तो 12 मॉडल है, बहुत पुराना मॉडल है। फिर क्या हुआ, गुम हो गई, ढूंढ लेते हैं, लेकिन हमें 10-15 दिन हो गए हैं, कोई सुराग नहीं मिल सका। ना पुलिस तो सो गई है। ठीक, शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। चौधरी लियाकत अली, मेट्रो 1 न्यूज़, सफदराबाद। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मजीद खबरें भी शामिल करें। आपको बताएं, सोहबतपुर की तहसील बांझीपुर में गुज़िश्ता 3 दहाइयों से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। जिला सोबतपुर में रोड के हवाले से बात की जाए तो मांझीपुर टू भंड रोड गुज़िश्ता 3 दहाइयों से टूट फूट कर अपनी मियाद खो चुका है। मांझीपुर के अवाम जिस रोड के बनने की मुंतजर है, उस रोड का कई मरतबा फंड रिलीज हुआ मगर फिर भी रोड ना बन सका, जिसके बायस यहाँ के मकीन दर्दनाक जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। अब इस रोड की हालत यह है कि लोग पैदल तक सफ़र नहीं कर सकते। इमरजेंसी की सूरत में मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो चुका है। यहाँ के मकीनों ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान से अपील करते हुए कहना था कि बलूचिस्तान में कई हुकूमतें तब्दील हो चुकी हैं मगर न बदली तो मांझीपुर रोड की हालत। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है, नोटिस लेकर भंटू मांझीपुर रोड को पाया तकमील तक पहुँचाएँ। कैमरा टीम के साथ गुलाम नबी जमाली, सोबतपुर। शेखोपुरा की खबर शामिल करें। आपको बताएं, शेखोपुरा में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए वबा की पेश नज़र रजिस्ट्री ब्रांच में आने वाले सालीन मुकम्मल तौर पर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं। इसी हवाले से आपको बताएं, शेखोपुरा में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए वबा के पेश नज़र रजिस्ट्री ब्रांच में आने वाले सालीन को मास्क, सैनिटाइजर के इस्तेमाल के बाद उन्हें एक एक करके बुलाया जाता है। तहसीलदार चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा गुज्जर ने मेट्रो 1 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हुकूमती SOPs पर अमल करके ही तमाम लोग खुद को और अपने इर्द गिर्द लोगों को महफूज रख सकते हैं।
गुजरावाला की खबर शामिल करें। आपको बताएं, गुजरावाला में चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको मोहसिन रजा खान ने कोरोना के पेश नज़र घर बैठे गैपको सार्फिन के बिजली के मुताल्लिका मसाइल के फौरी अजाले के लिए रीजन भर में ऑनलाइन शिकायतें वसूल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली संगीन हालात के बावजूद गैपको इंतजामिया सार्फिन की शिकायत के अजाले के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। इस सिलसिले में चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको मोहसिन रजा खान की हिदायत पर सिटी डिवीजन गुजरांवाला में सार्फिन की ऑनलाइन शिकायत का इंदराज और इनके फौरी हल के लिए एडिशनल चीफ इंजीनियर गैपको बशीर अहमद की सरबराही में ई कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें बजरिया फोन, ईमेल और व्हाट्सएप पर शिकायत दर्ज करवाने वाले सार्फिन की शिकायत के फौरी अजाले के लिए अहकाम जारी किए गए। इस मौके पर एडिशनल चीफ इंजीनियर सिटी बशीर अहमद का कहना था कि वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हिदायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको मोहसिन रजा खान ने कोरोना वबा के पेश नजर घर बैठे गैपको सार्फिन के बिजली से मुतल्लिका मसाइल के फौरी अजाले के लिए रीजन भर में सर्कल सतह पर ई कचहरियों के इनकाद का हुक्म दिया है। आज जो कचहरी मुनक्कद की है उसमें टोटल 18 नंबर कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें ज़्यादातर बिजली की तारें जो घरों के ऊपर से गुजर रही हैं उनके मुतालिक हैं या बिजली के बिलों की अक़सात के मुतालिक हैं। तो जो बिजली के बिलों की अक़सात थी फ़ौरन कर दी गई हैं और बाकी जो हमारी SOP है, तारें जो घरों के ऊपर से गुजरती हैं उसके हिसाब से हदायत जारी कर दी हैं एक्शन हजरात को। तो इंशाल्लाह जो भी हमारी SOP है उसके हिसाब से उनकी फौरी उनका हल करेंगे। इस मौके पर एक्शन सिटी तारक रसूल, सिटी डिवीजन के SDO साहिबान और दीगर अमला भी मौजूद था। कैमरामैन फाद खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो 1 न्यूज़, गुजरांवाला। आप कुछ बात करें पतोकी की। आपको बताएं, पतोकी में असिस्टेंट कमिश्नर ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी करके भारी जुर्माने आयद किए हैं। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। पत्तोकी शहर भर में असिस्टेंट कमिश्नर सरदार आसफ अली डोगर की सरबराही में हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs के खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों और मोटरसाइकिल सवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 5 दुकानदार जबकि मुतद्दा मोटरसाइकिल सवार लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल न करने पर दुकानों को सील करने के साथ साथ जुर्माने भी आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सरदार आसफ अली डोगर ने मजीद बताया कि हुकूमत की जानिब से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है और ताजर बरादरी के लिए ज़रूरी है कि हर सूरत में मास्क और सैनिटाइज़र और समाजी फासले को यकीनी बनाएं, जबकि हुकूमत के SOPs के खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों की ज़िंदगियों से खेलने वालों को किसी सूरत में माफ़ नहीं करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी अजहर तुफैल, मेट्रो 1 न्यूज़। अब खबर थे बुरेवाला से, जहां थाना सिटी पुलिस की समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां जारी है। 6 मुलजिमान से शराब, चर्स और नाजायज असलहा बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। आपको बताएं, बुरेवाला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एहसानुल्लाह चौहान की हिदायत पर थाना सिटी पुलिस ने 24 घंटों में 6 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा, चर्स और शराब की भारी मिकदार कब्जे में ले ली। SHO सिटी जहूर का कहना है कि समाज दुश्मन अनासिर खास तौर पर मुंशनात फरोशों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अब कुछ बात करें मिंचनाबाद की। आपको बताएं, मिंचनाबाद के नवाही कस्बा में अहले खाना ने माइक्रो फाइनेंस बैंकों के खिलाफ एहतजाज किया। इनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं मोहम्मद अब्बास से। जी मोहम्मद अब्बास, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील मिंचनाबाद के एक नवाही कस्बा बेरवाला में, जहाँ पर लोग माइक्रो फाइनेंस बैंकों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करते हुए लोगों का कहना है कि हमने माइक्रो फाइनेंस बैंकों से कर्जे लिए थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हमारे कारोबार जो हैं वो बंद हो गए हैं और इसके अलावा जो फसलें हैं वो टड्डी दिल की नज़र हो गई हैं। लोगों का कहना है कि घर में फाकियों की नौबत है और हम माइक्रो फाइनेंस बैंकों को कर्जे वापस नहीं कर रहे हैं। बैंकों के जो मुलाजमीन हैं वो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। इस वक्त गांव के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी माइक्रो फाइनेंस को पैसे लाए ने वो आते सानू तंग करते हैं, साढ़े को पैसे नहीं है गए। ज़्यादा मेहरबानी की है इमरान खान से है कि सानू माफ़ किया जाए।
جی، جس طرح کہ آپ نے اس دیہاتی کی بات سنی کہ ان کا کہنا تھا کہ مائکرو فنانس بینکوں سے قرضے لیے تھے لیکن ہماری فصلیں خراب ہونے کی وجہ سے ہم قرضے واپس نہیں دے رہے ہیں. ان کا وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار اور چیف سیکرٹری پنجاب سے مطالبہ ہے کہ ہمیں بینکوں کے قرضوں میں ریلیف دیا جائے. شکریہ محمد عباس، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. 2 تحصیلوں اور 13 لاکھ آبادی کا واحد ریلوے اسٹیشن شجاباد پر تاحال کوئی ٹرین کا اسٹاپ بحال نہیں کیا گیا. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں وجاہت حسین سے. جی وجاہت حسین، مزید بتائیے گا. جی بالکل، 2 تحصیلوں کو ملانے والا شجاباد اور جلال پور پیروالا کا اکلوتا ریلوے اسٹیشن اس ٹائم ویرانی کا منظر پیش کرنے لگا ہے. حکومت نے کرونا وائرس کے پیش نظر تمام شجاباد ریلوے کے تمام ٹرینوں کا سٹاپ فی الوقت مقرر نہ کیا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک شہری موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. جی، شجاباد کے اندر لاکھوں آبادی پر یہ دونوں تحصیلوں سے جو مسافر ہیں یہاں سے آتے جاتے ہیں. یہاں پر ہمارے ہاں پہلے ایک مقامی گاڑی چلتی تھی ذکری ایکسپریس، لیکن ذکری ایکسپریس کا بھی سٹاپ شجاباد میں نہ دیا گیا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایس او پیز کے تحت ماسک لگا کر اور سینیٹائزر کا استعمال کر کے یہاں سے مسافروں کو سوار کرایا جا سکتا ہے اور یہاں کی جو آنے جانے کی محرومی ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے. مسافروں کو درپیش مسائل ہیں، ملتان جاتے ہیں وہاں پر سیٹیں نہیں ملتی اور وہاں پر کراچی حیدرآباد کئی دن نہیں جا سکتے اور وہ بیچارے بسوں میں دھکے کھانے پہ مجبور ہیں. خدا کے لیے یہاں پر ذکری ایکسپریس کا کم از کم جو یہاں پر 54 سیٹوں کا کوٹا ہے اسی کا سٹاف دے جائے اور 54 سیٹیں دے دی جائیں، یہاں سے ایس او پیز کے تحت سوار کیا جا سکتا ہے. جی جیسا کہ آپ نے سنا، ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر وفاقی وزیر ریلوے ایس او پیز کے تحت اگر یہاں پر ٹرینوں کے سٹاپ بحال کر دی جائیں تو شہری اس سے سفری سہولیت سے زیادہ مستفید ہو سکیں گے. جی شکریہ وجاہت، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. جہلم کی خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں جہلم کے شہریوں نے کورونا وائرس کی ایس او پیز کو ہوا میں اڑا دیا ہے. سبزی منڈی میں بازار میں خریدار بغیر ماسک اور سماجی فاصلے کے نظر آتے ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مرزا قاسم بیگ سے. جی مرزا قاسم بیگ، مزید بتائیے گا. جی بالکل، جہلم میں کرونا وائرس میں مبتلا مریضوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ غیر سنجیدگی ہے. کسی قسم کے کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. شہریوں کی جانب سے کرونا سے بچنے کے لیے نہ تو ماسک نہ ہی سماجی فاصلوں پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. سبزی منڈی ہو یا بازار، شہریوں کا جمع گفیر خریداری کرتے نظر آتا ہے. چند ہفتے قبل شہر کے مختلف مقامات پر ڈس انفیکشن گیٹ نصب کیے گئے تاکہ شہری کرونا وائرس سے محفوظ رہ سکے، لیکن اب جراثیم کش گیٹ کہیں نظر نہیں آتے. جبکہ دوسری جانب ضلعی پولیس نے ڈبل سواری اور ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں. شہر کے داخلی خارجی رستوں پر ناکے لگا کر سخت چیکنگ کی جاتی ہے. ضلعی انتظامیہ پوری طرح متحرک دکھائی دیتی ہے. دکانوں اور مارکیٹوں میں ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے پر دکانیں اور مارکیٹیں سیل کر دی جاتی ہیں اور جرمانے عائد کیے جاتے ہیں. جی شکریہ مرزا قاسم بیگ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ہارون آباد کی خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں ہارون آباد اسسٹنٹ کمشنر محمد طیب کی زیر صدارت ٹڈی دل کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا. محکمہ زراعت آفیسر اور ماہرین نے شرکت کی ہے. آپ کو اسی حوالے سے بتائیں کہ ہارون آباد اسسٹنٹ کمشنر محمد طیب کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کا مقصد ٹڈی دل سے بچاؤ کے لیے اقدامات کرنا تھا. اس موقع پر گاؤں کی سطح پر مشاورتی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں. کمیٹی کے نمبردار زمینوں اور محکمہ زراعت کے ماہرین شامل ہیں. ٹڈی دل سے بچاؤ کے لیے ایپلیکیشن بھی بنائی گئی ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹڈی دل سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی مل سکے. اسسٹنٹ کمشنر محمد طیب کا کہنا تھا کہ اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی سطح پر اس کی تیاری کرے تاکہ ہمارے زمیندار بھائیوں کی فصلوں کی حفاظت کو ممکن بنایا جا سکے. مونسون بارشوں سے قبل سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا ہے. فرضی مشقوں میں ریسکیو 1122 کے عملے نے کمال مہارت سے سیلاب میں پھنسے لوگوں کو نکالنے اور ان کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے اور ڈوبتے ہوئے شخص کو نکالنے کا عملی مظاہرہ کیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
मानसून बारिशों से कबल मुमकिन सैलाबी सूरत से निपटने के लिए चंद्रकोट नहर पर रेस्क्यू 1122 के जरिए तमाम मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया। फर्जी मशकों के मायने के लिए डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इनके अलावा डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 मोहम्मद अकरम पनवार, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ननकाना डॉक्टर कामरान वाजिद समेत तमाम तलका महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। फर्जी मशकों के आगाज पर रेस्क्यू 1122 के जवानों ने शानदार अंदाज में मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर ननकाना को सलामी पेश की। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 ने डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जिला ननकाना साहब में हफ्त मदर, हल्ला खिचियां, हल्ला सईदा समेत 9 मकामात पर सैलाब का खतरा है, जहां पर तमाम मुतलकादारों ने अपने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौका पर रेस्क्यू 1122 की जानब से सैलाब में फंसे हुए लोगों को निकालने, इनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और डूबे हुए शख्स को निकालने का अमली मुजाहरा भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने तमाम मुतलका जिली महकमा जात की जानब से लगाए गए फील्ड कैंप का भी दौरा किया और सैलाब में इस्तेमाल होने वाले सामान का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद ने तमाम मुतलका महकमों की कारकर्दगी को सराहा। इनका मजीद कहना था कि सैलाब के खतरे के पेश नजर इंसानों और जानवरों की जान बचाने वाली अद्वियात का वाफर मिकदार में स्टॉक रखा जाए। रेस्क्यू 1122 में तमाम अदारे हर वक्त सैलाब जैसी कुदरती आफात से नबर्दुमा होने के लिए तैयार हैं। फर्जी मशकों का बुनियादी मकसद रेस्क्यू 1122 की पेशा वराना सलाहियतों में मजीद इजाफा करना है। कैमरामैन हरून शाह के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज, ननकाना साहब। हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट जवेरा मकबूल और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुतादिद दुकानें सील कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह सियालकोट में भी लॉकडाउन में नरमी के बाद शहरियों दुकानदारों ने हुकूमती SOPs हवा में उड़ा दिए। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट जवेरिया मकबूल रंधावा ने मेट्रो 1 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी शहरी को SOPs की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में नरमी की गई थी ताकि लोगों को आसानी फराहम की जाए और वो अपना कारोबारी जिंदगी जो है बआसानी चला सकें, लेकिन ये देखा जा रहा है कि बहुत सारी जगहों पर SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसकी वजह से हुकूमत और इंतजामिया दोबारा मुतहरक हो गई और इंटेंस किस्म का लॉकडाउन के खिलाफ जो SOPs की वॉयलेशन उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है और इंशाल्लाह इंश्योर कराया जाएगा कि जितनी भी हुकूमती SOPs हैं उनको हर जगह पे मुकम्मल तौर पे फॉलो किया जाएगा। शहरियों ने हुकूमती रिलीफ के दौरान इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। शहर भर में मुख्तलिफ मुकामात पर SOPs पर अमल न करने वाली दुकानों को सील कर दिया गया। दुकानदार न सिर्फ खुद फेस मास्क इस्तेमाल करें बल्कि जिस गाहक ने फेस मास्क नहीं लगाया उससे डीलिंग न करें। हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर न सिर्फ दुकानें बल्कि बाजार भी बंद कर दिए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ उस्मान भट्ट, मेट्रो 1 न्यूज, सियालकोट। मीरपुर माथेरो के नवाही गांव रुस्तम कोराई में 2 हफ्ते कबल कत्ल होने वाले मुख्तार अहमद के कातिल ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। बिरसा का कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मीरपुर माथेरो के नवाही गांव रुस्तम कोराई में 2 हफ्ते कबल कत्ल होने वाले मुख्तार अहमद के विरसा ने एहतजाज करते हुए बताया कि 2 हफ्ते कबल मुख्तार अहमद को बेदर्दी से कत्ल किया गया। पुलिस कातिलों की पश्त पनाही करने से मसरूफ है। IG सिंध और आला हुकाम इसका नोटिस लें। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि कातिल मफरूर है जिनकी तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कसूर में ट्रैफिक के दौरान नाअहली की वजह से शहरी बेहाल हो गए हैं। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, कसूर में तेजाबजात के साथ जहां पर लोगों ने जो है वो सड़क के किनारों पर कब्जा कर रखा है, वहीं पर कसूर में जो है रिक्शा माफिया भी बेलगाम हो चुका है। कसूर के हर चौक, हर मेन शाहराह पर जो है वो रिक्शा माफिया ने नाजायज स्टैंड बना रखे हैं, जिसकी वजह से जो कसूर में ट्रैफिक का निज़ाम है वो दरम हो चुका है, दरम बरम हो चुका है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ट्रैफिक पर कंट्रोल करने वाली ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो भी खरवाबे खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ है। ट्रैफिक का अमला भी जो है वो मुफ्त की तनख्वाहें बटोरने में मसरूफ है। जब हमारी मुकामी लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमने 12 दफ़ा जो है DSP ट्रैफिक को भी जो है आगाह किया है, लेकिन DSP ट्रैफिक की नाअहली भी जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है कि कसूर की हर मेन शाहराह पर जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। जगह और जगह पर रिक्शा माफिया ने जो है वो नाजायज स्टैंड बना रखे हैं, जिसकी वजह से आए रोज हादसात में भी जो है वो इजाफा होता जा रहा है। जी
गुजरावाला में पंजाब हुकूमत की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज बंद करवाई जाने वाली मार्केटें दोबारा खुल गईं। मार्केटों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ का कहना है कि SOPs पर अमल दरामद न करने वाली दुकानों को भारी जुर्माने के साथ सील कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज बंद होने वाली मार्केटें दोबारा खुल गई हैं। मार्केटों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज SOPs पर अमल दरामद न करने पर जिला इंतजामिया ने ग्रैंड ऑपरेशन के बाद मार्केटें बंद करवा दी थी। डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ ने कहा है कि मार्केटों को गुज़िश्ता रोज वार्निंग के तौर पर बंद करवाया गया था और जो दुकानदार SOPs पर अमल दरामद नहीं करेगा उसकी दुकान को भारी जुर्माने के साथ सील कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए जिला इंतजामिया के नुमाइंदे मुख्तलिफ बाजारों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। खानेवाल की खबर शामिल करें। आपको बताएं, खानेवाल में लॉकडाउन में हुकूमती नरमी शहरियों को महंगी पड़ने लगी। 24 घंटों में लोकल 8 केस रिपोर्ट हुए हैं। आपको बताएं, कोरोना वायरस बेकाबू होने लगा। 8 नए लोकल केस रिपोर्ट हो गए। कोरोना वायरस के मरीजों में 1 ज़ायरीन, 11 तबलीगी जमात के अफराद समेत 39 लोकल अफराद और बैरून मुल्क से आने वाले 8 अफराद में अब तक कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। जिले भर में मरीजों की तादाद 69 हो गई है, जबकि 31 मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। 38 मरीज अब भी जेर इलाज हैं। 8 नए मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 69 हो गई, जबकि कोरोना वायरस मकामी लोगों में तेजी से फैलने लगा है। असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी नवीद अहमद ने SOPs की पासदारी न करने पर मुतादिद दुकानें सील कर दी हैं। आपको बताएं, मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे की वजह से हुकूमती मशीनरी भी हरकत में आ गई है। AC विहाड़ी अहमद नवीद बलोच ने रेल, बाड़ा और विहाड़ी में SOPs पर अमल न करने पर कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों को सील कर दिया। इस मौके पर इनके हमरा SHO थाना सिटी, बल्दिया ऑफिसर्स भी मौजूद थे। AC विहाड़ी अहमद नवीद बलोच का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह हुकूमत की तरफ से मुरतब किए गए SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरनामे में इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।